ہاں جی، دوسرا گروپ کس کا تھا؟ اور یہ جو میکائیل کا دوسرا گروپ تھا یہ کروبی فرشتے ہیں، کروبیم ہیں، آمین۔ اور کروبیوں کا کام تھا جنگ کرنا، آمین، لڑائی کرنا، یہ لڑاکو فرشتے ہیں۔ آج بھی جب کیسز کے دوران مدد یا کمک کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے تو یہ والی ٹولی نہیں آتی، جبرائیل والی ٹولی نہیں آتی، بلکہ میکائیل والی ٹولی اور اس کے فرشتے آتے ہیں، آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب جبرائیل والی جو ٹولی ہے، یہ جبرائیل والے جو گروپ ہے وہ پیغام لے کر جاتے اور پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ جبرائیل جو ہے یہ نبیوں کے پاس جاتا تھا، آمین، اور یہ جبرائیل جو ہے یہ یسوع کی پیدائش کے بارے میں بھی بتاتا ہے، آمین۔ لیکن میکائیل نہیں آتا، کہتا کہ یسوع پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ میکائیل کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ میسنجر ہو، یہ فائٹر فرشتہ ہے، ہاللیلویا، ہمیں جی یہ فائٹر فرشتہ ہے، یہ میسنجر فرشتہ ہے، آمین۔ اب ایک بندے کا کام ہے میسج دینا، وہ بندوق پڑھ کے لڑنا شروع کرتا ہے، ہمیں اپنے والوں کے کر کے ٹرگر دبا دے، ہو سکتا ہے نا سر، کیونکہ یہ اس کا کام میسج پہنچانا، اس کا کام لڑنا ہے ہی نہیں ہے، تو یقینی بات ہے اس کو لڑنے والی صفت بھی نہیں دی گئی، آمین، آمین۔ اس لیے ایک ٹائم ایسا آیا جب یہ جبرائیل جو تھا یہ دانیل کی دعا کا جواب لے کے جا رہے تھے، پھنس گیا، کیونکہ فائٹر فرشتہ نہیں ہے، آمین، فائٹر اینجل نہیں ہے یہ، آمین، تو یہ پھنس گیا۔ 21 دن تک آسمان پہ جنگ ہوتی رہی اور یہ ابلیس کے فرشتوں سے لڑتے رہے، لیکن کوئی چارہ جوئی۔ اچھا، اس کے بعد اس کو چھڑانے کے لیے کون آیا؟ میکائیل اور اس کے فرشتے آئے اور آ کر فارس کے موکلوں کے یعنی ابلیس کے موکلوں کے ساتھ لڑے۔ جب انہوں نے آ کے فارس کے موکلوں ابلیس کے موکلوں سے لڑائی کی، انہوں نے رہائی مل کی دے پھر دانیل سے کھولا، آمین۔ اچھا، یہ تو دو گروپ ہو گئے، تو پہلا گروپ کس کے اندر تھا بھائی؟ ہاں جی، سرافیم جبرائیل، اس کی ٹولی یہ سرافیم فرشتے ہیں۔ سرافیم فرشتے پیغام رساں فرشتے ہیں۔ کروبیم جو ہیں یہ آتشی رتھوں کے ساتھ چلتے ہیں، یہ آتشی رتھ ہیں، آمین، جو خدا کے تخت کو لے کر چلتے ہیں، آمین، یہ وہ فرشتے ہیں۔ اور جبرائیل جو ہیں یہ کروبیم ہیں، یہ سرافیم ہیں، آمین۔ یہ کون ہے جی؟ کروبیم ہے، اور یہ کون ہے؟ اچھا، اب ان دونوں سے اوپر ایک گروپ تھا آسمان پر، ان دونوں سے اوپر ایک گروپ تھا آسمان پر، کون سا تھا؟ کس کا تھا؟ ہے جی؟ ہاں جی، کس کا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے انہاں دونوں تو تگڑا ہے۔ یہ آسمان پر سیکنڈ کمانڈ تھا، کون تھا؟ جیسے آج سمجھ لیں آج کے دور میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے ملک کا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم ہوتا ہے، آمین، آمین۔ تو سمجھ لیں آسمان پر وزیر اعظم کی سیٹ تھی اس کی، آمین۔ اور یہ میکائیل اور جبرائیل جو تھے، یہ دونوں جو گروپ تھے یہ لوسیفر سے کچھ کم تگڑے معلوم ہوتے ہیں، آمین۔ یہ تو کافی زیادہ کمزور معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آیا نہیں جاتا ہے کس دن تک رکا رہتا ہے، آمین۔ اب لوسیفر، اچھا جی، میکائیل کا کام کیا ہے؟ لڑائی والے۔ یہ کون ہے؟ میسج والے۔ یہ کون ہے پھر؟ یہ ہے پرستار، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آسمان پر اس ٹولی نے باغی ہو گئے، بغاوت کر لی ہے۔ آسمان پر اس ٹولی نے کیا کر لی ہے؟ بغاوت کر لی ہے۔ خدا دے نال روس پے، خدا دے نال لڑائی ہو گئی ہے، گناہ کر لیا، آمین۔ اس کی اور اس کی پوری ٹولی نے بغاوت کی ہے خدا کے ساتھ، کیونکہ خدا نے اس کے ذمے ہر ایک چیز لگائی تھی، آمین۔ اور خدا نے اس کو سپیریئر اس لیے بنایا تھا، لکھا ہے اس کے پروں میں سے تار تار سانسوں کی آوازیں نکلتی تھی، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
जब इसके पर हिलते थे तो उसमें से तारदार साजों की आवाजें निकलती थी। तारदार साज कौन से हैं? गिटार तारदार साज है, हारमोनियम तारदार साज है, हालेलुया, जिनके अंदर तारें लगी हैं साजों के अंदर। आमीन। लिखा है इसके जब पर हिलते थे, हालेलुया। तो मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं, कभी इमेजिन करता हूं कि लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं, आमीन, और लाखों करोड़ों फरिश्तों के पास यही वाले पर है जिसके हिलाने से साजों की आवाज। क्या आसमान पे समा होता होगा खुदा की परस्तिश का, हालेलुया। क्या समा होता होगा आसमान पर खुदा की मदद सराई का। हर वक्त खुदा की हजूरी में परस्तिश हो रही है, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने इससे खुश होकर, किससे? परस्तिश से खुश होकर इसको सेकंड कमांड बनाया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा इतना लड़ाई से खुश नहीं होता, खुदा इतना बदरुआ कटे तो खुश नहीं होता जितना परस्तिश से खुश होता है, हालेलुया। खुदा इतना मैसेज लेके जाने हैं, लेके आने से खुश नहीं होता जितना खुदा परस्तिश से होता है। अब गौरतलब बात है कि चौथे दिन के अंदर इनको बनाया और फिर इन्होंने बगावत कर ली लंबे अरसे में। बगावत करने के बाद ये तो मैं समझता हूं शायद लड़ने की ख्वाहिशमंद या उम्मीद थे शायद डायरेक्ट खुदा दे, है जी, लेकिन खुदा ने कहा अच्छा कोई गल नहीं, तू सेकंड कमांड सी ना, कोई गल नहीं, देख हुण तेरे थल्ले वाला तेनू मात देगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मिकाइल के वसीला से इसको शिकस्त खुर्दा कर दिया, हालेलुया। लिखा मुकाशवा की किताब में आसमान पर बड़ी जंग हुई, मिकाइल और उसके फरिश्तों ने अज़दहा से, अज़दहा कौन है? अब लूसीफर है, आमीन। अज़दहा और उसके बढ़िया भाई। फिर आसमान पर लड़ाई हुई और मिकाइल और उसके फरिश्ते अज़दहा से लड़ने को निकले, अज़दहा से लड़ने को निकले जी, और अज़दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। हाँ जी, अकेला नहीं सी भी टोली भी नारे, आमीन। इसने अकेले ने बगावत आसमान पर नहीं की, बल्कि इसके साथ फरिश्तों ने मिलकर, इसके ग्रुप वाले फरिश्तों ने बगावत की है, आमीन, आमीन। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो इसके साथ की ताकत रखते थे, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, एक और बड़ी जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। जो लूसीफर के करीब करीब की ताकत रखते थे, मिकाइल इसके करीब की ताकत नहीं रखता था, जो लूसीफर के करीब करीब की ताकत रखते थे, अभी तक खुदा ने उन फरिश्तों को कैद में रखा हुआ है। बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है, यहूदा के खत में चलते हैं, आइए यहूदा का खत, यहूदा का खत एक ही बाब है, एक ही चैप्टर है जी, छठी ऐसे। और जिन फरिश्तों ने अपने कायम ना रखा, हाँ जी, लूसीफर के साथ और बाकी और फरिश्ते हैं, जिन फरिश्तों ने जी, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, लूसीफर के साथ बाकी और फरिश्ते हैं जो इसके बराबर की ताकत, इसके आसपास की ताकत रखते हैं, उन्होंने भी इसके साथ मिलकर कहा हाँ हाँ हम भी तेरे साथ है, तू कर बगावत, असी अपना राज बढ़ावांगे, ठीक है, हम अपनी बादशाही बनाएंगे, तू कर बगावत, असी तेरे नाड़ा, ठीक है जी। आगे क्या हुआ? जिन फरिश्तों ने मिलकर लूसीफर के साथ बगावत की, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, अपनी हुकूमत को कायम ना रखा जो खुदा ने उनके सुपुर्द की थी, बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया। हाँ जी, आसमान का मकाम क्या था? इसका मकाम क्या था? सेकंड कमांड था आसमान पर भाई, छोटी बात है, छोटी बात है। लूसीफर शैतान आसमान पर सेकंड कमांड था, और इसने अपनी हुकूमत को, इसके साथ वाले फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को आसमान पर अपने ओहदों को बरकरार नहीं रखा, तो क्या हुआ? पढ़िएगा। और बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, अपने खास मकाम को छोड़ दिया जो आसमान पर दिया गया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर, हाँ जी, इसके साथ वाले फरिश्ते, इसके साथ वाली आगे पीछे थोड़ी बहुत ही ताकत काटो हुए, उनको खुदा ने हमेशा की दायमी कैद के अंदर कैद में रखा है। क्या किया है फरिश्तों को? लूसीफर के साथ के जो ताकत रखने वाले फरिश्ते थे, उन फरिश्तों को खुदा ने भी खुले में नहीं छोड़ा। ऐसा लाओ, एक छुट्टियां होया ते इन्ना काम खराब हो गया ते जो भी छुट्टे होंगे तो फिर पता नहीं की होना। क्या ख्याल है? खुदा ने क्या चल तेनू मैं छड़ना
तू मौज कर ले दुनिया दे जो तेरे को होंदा है, तेरे साथी तेरी टोली भी छाड़ देना, लेकिन इसके साथ वाले जो फरिश्ते थे, जो इसके साथ मुशाफकत रखने वाले, ताकत रखने वाले फरिश्ते थे, उन फरिश्तों को खुदा ने कैद में रखा है। और कब तक कैद में रखा? पढ़िएगा भाई। उनको उसने दायमी कैद में, तारीकी के अंदर, दायमी कैद में, तारीकी के अंदर। मैं आपको बताता चलूं, मेरा एक अपना पर्सनल रूहानी वाकया है। मैंने जब इस आयत को पढ़ा बाइबल मुकद्दस में, तो मैं खुदावंद से पूछना शुरू हुआ, खुदावंद ये कहाँ हैं फरिश्ते? ये कौन से फरिश्ते हैं? ये जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये फरिश्ते कहाँ पर हैं? मैंने दुआ में पूछना शुरू किया, मुझे कोई जवाब ना मिला। मैंने रोजे रखना शुरू कर दिए, कल पूछ रहे हैं रब नू, खुदावंद ये फरिश्ते कौन हैं जो ऊपर आसमान पर से नीचे फेंक के, जिनको तूने आज तक कैद में रखा है? कौन है ये फरिश्ते? मैंने रोजे रखना शुरू कर दिए, सवाल यही पूछ रहा बार बार। एक दिन क्या हुआ, दोपहर के वक्त मैं रोजा रखकर खुदा की हुजूरी में बैठा था, और मैं अपने कमरे में बैठा हूं, और अचानक ऐसा हुआ है कि मैं जैसे नींद की कैफियत में चले गया। आमीन। और नींद की कैफियत में ऐसे हूं जैसे कोई जैसे बेहोश हो जाता है, बेहोशी की हालत में। और मैं क्या देख रहा हूं कि मैं जमीन के अंदर उतरता जा रहा हूं, जमीन की तह में उतरता जा रहा हूं, उतरता जा रहा हूं, उतरता जा रहा हूं। और वो सफर इतना लंबा है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। मैं जमीन की इंतहा में उतरता जा रहा हूं, यकदम वो सफर खत्म हो गया। जब सफर खत्म हुआ तो मैं एक बड़ी अजीब सी जगह पर पहुंचा, जहां पर जेलें बनी है। और वह जेलें कैसी हैं? इसको रब करें जल्दी से। जरा देखिएगा कि वो जेलें कैसी हैं। वो जेलें जो हैं, उनके दरवाजे ऐसे बने हैं, इस तरह के बने हैं, ऐसे दरवाजे हैं उनके। और यहां पर एक शख्स है और एक यहां पर शख्स है, दोनों तरफ एक शख्स है। और इस दरवाजे के अंदर एक बड़ा हैबतनाक सा शख्स है जिसको रखा गया है, और मेरे साथ कोई शख्स है। मैं उससे सवाल करता हूं उस ड्यूरेशन में, बेहोशी की ड्यूरेशन में, क्या ये कौन है, ये अंदर कौन है? तो वो मुझे कहता है, ये वही तो है जिसका तू पूछता बार बार। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा ने इनको तारीकी की गारों के अंदर कैद में रखा है। आमीन। और ये फरिश्ते उस वक्त निकाले जाएंगे जब हिसाब किताब का वक्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले इनको नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इनको कैद में ही रहना है। आमीन। इनको कैद में ही रहना है। आमीन। मेरा ख्याल है कि अभी हम ब्रेक लेते हैं, आप चाय पिए, और रोजे के भी टाइम हो चुका है, तो अभी अजान भी होगी, तो 15 से 20 मिनट का हमारा ब्रेक होगा, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाकर दुआ करेंगे। मुख्तर आइए अपने सर को झुकाते हैं। मैं पास्टर फयाज से गुजारिश करूंगा, प्लीज वो दुआ में रहनुमाई करें।